Hi, I'm Manopal and I'm back with season 7. Word! Hi, I'm Manopal and I'm back with season 7, episode number 8 from the prediction series. And आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं एक बहुत Yo, physics. Hi, I'm Manopal and I'm back with season 7, episode number 8 from the prediction series. For those of you who are new here, जिन्होंने चैनल को newly subscribe किया है, in the prediction series I bring to you questions which are very unique. Often I make them by myself, very original questions. Very unique in the sense कि बहुत different setup रहता है and the type of question that you won't generally find in a coaching material, but the type that have been coming in JEE Advanced in recent years. Alright, so this series is to make you get comfortable with actually encountering एकदम fresh सा question, एकदम अलग सा नया सा setup and still be comfortable enough to do it in the exam time pressure in your actual JEE Advanced exam. तो इस सीरीज में मैं वो करता हूँ and आज के एपिसोड में we are going to do a beautiful question which looks very mathematical and most students will think that this is a very mathematical question जिसमें बहुत सारा integration involved है, but there is a beautiful elegant method. Alright, तो ये question जो है वो मैं screen पे display कर देता हूँ and if you want you can pause the video and try it out and then take a look at my solution. Alright, so question क्या बोल रहा है, मेरे पास दो semi infinite cylinders हैं and uniformly charged है. So these are solid cylinders. कुछ बोला नहीं गया क्वेश्चन में, सिर्फ सिलेंडर बोला गया है. Then it always means solid unless they specify hollow या shell. Then you have to take मतलब अगर वो specify नहीं है then you have to take it as solid. ठीक है, तो charge density भी दिया गया है rho. So both identical semi infinite cylinders हैं and charge density rho है, दोनों के लिए radius r है and एक point charge रखा हुआ है symmetrically in equilibrium at distance d from each cylinder. From the face of each cylinder, and the question is asking कि इस चार्ज को थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस किया जाए तो what will be the time period of small oscillations. ठीक है, so the way most students will approach this question is they will think about first calculating the field of the semi-infinite cylinders. तो उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा डिस्क मान के, डिस्क का फील्ड तो पता होना चाहिए तुमको, तो डिस्क का फील्ड यूज करके you will have to first get the field of the semi-infinite cylinder. Then you'll have to get the field at a general point on the axis. Then you'll have to make some binomial approximation to get the field at a small distance from the equilibrium position. And then of course you will get the force proportional to the displacement, that is SHM, and फिर हो जाएगा question, no issues. But अगर exam में इस तरीके का question आया, you have to save time by using a very beautiful elegant method जो अभी मैं बताता हूँ. देखो, suppose I displace the charge by some amount x, इसको मैंने x से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा d plus x और ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा d minus x. x is very small. ठीक है, now because of the fact that this is infinite and this is also infinite, can I say कि अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसिडर करूँ, पतला सा छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर करूँ of 2x, तो ये पूरा लेंथ कितना बन जाएगा d plus x बन जाएगा. करेक्ट, मैंने स्पेसिफिकली 2x लेंथ का यहां पर एक डिस्क कंसिडर किया है सो दैट ये पूरा लेंथ कितना बनेगा d minus x plus 2x is d plus x. सो कैन यू सी कि इफ आई जस्ट लुक एट इतना पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, यहां से, so the charge is now equidistant from the left cylinder and ये जो right cylinder को मैंने इतना 2x लेंथ का मैंने डिस्क को हटा दिया, तो बचा हुआ जो सिलेंडर है वो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, तो the charge is equidistant. So of course because of this infinite nature both are identical and therefore दोनों का फील्ड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. करेक्ट, तो बचेगा सिर्फ इस पतले से डिस्क के कारण फील्ड. So you see we don't have to do actually any integration. The field at this point will only be due to this thin disk, बस, क्योंकि इसके पीछे वाला जो पूरा सिलेंडर है उसका फील्ड और ये वाला लेफ्ट का कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने पर्पसली 2x लिया. ठीक है, यू कैन जस्ट इमेजिन कि मान में आई जस्ट मेजर्ड d plus x फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज हियर एंड आई कैलकुलेटेड कि ये 2x होना चाहिए, तो
उतना पीछे का वाला पोर्शन का जो सिलेंडर का फील्ड है और इसका फील्ड है वो कैंसिल होगा। तो बच्चा अभी क्या, बस इस थिन डिस्क के कारण, तो इस डिस्क का थिकनेस 2x है, चार्ज डेंसिटी रो है, एंड फील्ड कितना होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो आई नो फील्ड ड्यू टू अ डिस्क इज हाउ मच, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस cos थीटा। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट यू शुड नो। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, करेक्ट। नाउ वो कैसे कैलकुलेट करूं मैं, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, इसका चार्ज कितना है, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर्ड इंटू 2x, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर्ड इंटू 2x, बट एरिया मतलब सरफेस, ये फ्लैट एरिया, सर्कुलर एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। So this is my sigma that I will substitute it here. तो कितना बन जाएगा, रो x by epsilon naught into 1 minus cos theta। अब cos theta को मैं कैसे मेजर करूं, कैसे कैलकुलेट करूं, ये तो r है एंड ये कितना है, because x is very small, this distance I can take it as, ये जो d minus x है उसको I can take it as d, doesn't matter, ठीक है, because we already have, see we want the force to be proportional to x, right, we already have x here, तो यहाँ पे कोई x का टर्म हमें नहीं चाहिए, सब निगलेक्ट करेंगे। अगर कोई x का टर्म यहाँ पर आ गया तो वो तो x स्क्वायर बन जाएगा, वो तो हम ऑफ कोर्स निगलेक्ट करने वाले हैं, करेक्ट। सो बिकॉज वी ऑलरेडी हैव x हियर, दिस 1 माइनस cos थीटा में कोई x का टर्म नहीं चाहिए मुझे, तो सब अप्रोक्सीमेट करके सब जो भी कांस्टेंट है बस वही रखेंगे। मतलब क्या कि यहाँ पे मेरे d माइनस x का टर्म ही नहीं रखूंगा, d कोई d मान लो, समझा। ओके, सो हियर आई हैव रो x बाय एप्सिलॉन नॉट, हो गया ना अभी, cos थीटा क्या बन गया, d डिवाइडेड बाय, ठीक है, एंड देयरफॉर द फोर्स वुड बी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो रो q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस d बाय इनटू x, करेक्ट। तो ये पूरा मेरे पास k इक्विवेलेंट इनटू x हो गया, सो दिस इज लाइक माय k इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट है, SHM वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। टाइम पीरियड इज, ठीक है, बस ये चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ऑलराइट, सो इट इज अ वेरी क्यूट प्रॉब्लम विद अ क्यूट सॉल्यूशन प्रोवाइडेड यू यूज द इन्फिनिट नेचर ऑफ दीज सिलेंडर्स। इसलिए मैंने सेमी इन्फिनिट वाला दिया था, बिकॉज आई वांटेड यू टू रिकॉग्नाइज कि इसके पीछे वाला पोर्शन और ये आइडेंटिकल है, बिकॉज वो फिर से सेमी इन्फिनिट बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ प्रिटी, ये जो द मेथड बिहाइंड दिस, एक्चुअली द एसेंस ऑफ द मेथड बिहाइंड दिस इज समथिंग दैट यू यूज even in maths, even in infinite ladder circuits वगैरह। मतलब जैसे ये वाला सर्किट आता है, अगर तुमने सर्किट्स पढ़े हैं कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंसेस का, तो द लॉजिक इज द सेम कि if you look at the circuit here and if you cut out this much portion and if you look at the circuit इसके पीछे, तो सेम ही है ना। तुम यहां से पूरा सर्किट देखो या यहां से पूरा सर्किट देखो, सेम है बिकॉज ऑफ द इन्फिनिट नेचर। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, मतलब वही एसेंस है यहाँ पर भी कि तुमने इतना पोर्शन हटा दिया तो भी इसके पीछे पूरा सेमी इन्फिनिट फिर से यही वाला बन गया, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मेरा टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। ओके, सो कभी भी इन्फिनिट ऐसे इन्फिनिट चीजें आए तो जस्ट थिंक अबाउट इफ यू कैन यूज दिस कि थोड़ा पोर्शन हटा दिया उसके पीछे फिर से इन्फिनिट ऐसे। ओके, so I hope you've enjoyed the episode. Let me know in the comment section, and मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर शायद ये क्वेश्चन डाला था तो शायद किसी ने प्रॉपरली फुली आंसर किया भी था using the standard method, so that's also very good. Even if you get this question using the standard method, the integration, that is also very good, no issues. Okay, so I hope you've enjoyed the episode. I will see you next time and I will see you at the top.